So today I am going to revise chapter Parliament. Why do we need Parliament? First of all, what is Parliament? It is the highest forum of debates and discussions. And members of Parliament are known as MPs. MP means members of Parliament. It is the largest law-making body in India. And it consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. In India, we have bicameral legislature. Bicameral means having two houses, and the two houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, how to differentiate between Lok Sabha and Rajya Sabha? First of all, तो you will write, पहले तो आप एक लाइन लगा लोगे सेंटर में, लोक सभा एंड राज्य सभा. लोक सभा एंड राज्य सभा. तो एक में आप लोक सभा में आप बताओगे इट इज द हाउस ऑफ. लोक सभा में आप बता दोगे इट इज द लोअर हाउस. इधर आप लिखोगे इट इज द अपर हाउस. हाउ टू डिफरेंशिएट लोक सभा एंड राज्य सभा? इट इज द लोअर हाउस, it is the upper house. It is known as House of People. It is known as House of Councils. Next, Speaker is the head of Lok Sabha. Vice President is the chairman of Rajya Sabha. Vice President is the chairman of Rajya Sabha. People who are at the age of 25 or above can contest for Lok Sabha elections. People who are at the age of 30, either 30, either 25. People who are at the age of 25 or above can contest for Lok Sabha elections. People who are at the age of 30 or above can contest for Rajya Sabha elections. Two members are nominated by President in Lok Sabha. Two members from Anglo-Indian community are nominated by President in Lok Sabha. 12 members are nominated by President from different fields in Rajya Sabha. 12 members are nominated by President from different fields in Rajya Sabha. It is known as non-permanent house. क्योंकि इसका टेन्योर 5 ईयर होता है, तो नॉन परमानेंट हाउस है. एंड दैट इज राज्यसभा में आप कहोगे परमानेंट हाउस. राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस क्योंकि वहां पे रिटायर होते हैं मेंबर्स. ऑन द मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years. तो आपको इस वे से इसको डिफरेंशिएट करना है. लिसन अगेन, इट इज द लोअर हाउस, इट इज द अपर हाउस, इट इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ काउंसिल्स. इधर आप बताओगे स्पीकर इज द हेड ऑफ लोक सभा. इधर वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोक सभा इलेक्शंस. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 30 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर राज्य सभा इलेक्शंस. इधर आप बताओगे 2 members are nominated by President from Anglo-Indian community. 2 members are nominated in Lok Sabha by President from Anglo-Indian community. Yeah, you can write in simple manner, 2 members are nominated by the President. इधर आप लिखोगे 12 members are nominated by the President. It is a non-permanent house. It is a permanent house. Now is it clear? अब इसमें से ना मैं एक जनरल नॉलेज की ये बात बताती हूँ. अगर मैं पूछूं which out of these which is the powerful house, तो लोक सभा.
because in India powers are democratic form of government, powers are in the hands of people and it's house of people. Lok Sabha is the powerful house. कैसे हम कहेंगे इट्स अ पावरफुल हाउस? लिसन केयरफुली. सबसे पहले तो आप बताओगे ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस. ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है. देन इट सेंड्स टू अदर हाउस. अगर एक मिनट इमेजिन ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में पास हो गया, देन लोकसभा सेंड इट टू राज्यसभा. राज्यसभा कैन डिले इट फॉर 14 days, 14 days. राज्यसभा कैन गिव इट suggestions. It depends upon the wish of Lok Sabha to follow the suggestions or not. Then bill is sent to president. President last authority है जिसने sign करने. Bill is sent to president. President can also delay that bill and make some changes. Send back. Lok Sabha make changes. It depends upon Lok Sabha to make changes or not. Then bill is again sent to president for his signature. And now president has to sign that bill. It means कहीं ना कहीं लोक सभा को ज्यादा पावर है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम कहेंगे क्लैशेस हो जाए बिल को लेके, इफ क्लैशेस अकर, हम कहें बिल को पास को लेके कोई क्लैश झगड़ा हो जाए, तो डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स. मेजोरिटी का डिसीजन माना जाता है एंड देयर इज मेजोरिटी इन लोकसभा. बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंशिएट में आप ये भी बता सकते हो 543 मेंबर्स एट प्रेजेंट 543 है, नेवर एक्सीड 550. 550 से ज्यादा नहीं होते एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स. आप ये नहीं कहोगे कि 543 ही होते हैं, नो. आप कहोगे नंबर ऑफ मेंबर नेवर एक्सीड 550. 550 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट एट प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स आर 543. राज्यसभा में 250 मेंबर्स, 250. इट मीन्स 238 इलेक्टेड होते हैं प्लस 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं. राज्यसभा में ऐसे है, ठीक है. तो ये भी आप डिफरेंशिएट में क्लाइंट बता सकते हो. लोकसभा में कह रही हूँ पावरफुल हाउस है. तो यहाँ पे डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रीवेल्स. तो मेजोरिटी किस हाउस में? लोकसभा. नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर इन लोकसभा, सो डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रीवेल्स. तो अपने आप बताओ कौन सा हाउस पावरफुल हुआ? लोकसभा. मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. मनी बिल सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल होता ही कहाँ पे इंट्रोड्यूस है? राज्यसभा में नहीं होता कभी भी. कहाँ पे होता है? लोकसभा. विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट. मनी बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट को प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है. विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. अब लोकसभा सेंड दैट बिल टू राज्यसभा. राज्यसभा जो भी सजेशंस थे, लोकसभा की मर्जी है वो चेंजेस करे चाहे ना करे. देन बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज टू साइन मनी बिल इमीडिएटली. ऑर्डिनरी को तो उसने डिले कर लिया, बट मनी बिल प्रेसिडेंट हैज टू साइन इमीडिएटली. वो उसको डिले नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, बिकॉज मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट कांट delay the money bill. President can delay ordinary bill, but president can't delay money bill because money bill introduced with the prior information of the president. तो यहाँ से सिर्फ इतनी बात समझ आनी चाहिए कि which house is powerful? लोकसभा. हाउस ऑफ पीपल है एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. वैसे भी if Lok Sabha passes vote of no confidence, you have done. If Lok Sabha passes vote of no confidence against the Council of Ministers, प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है, then प्राइम मिनिस्टर with this team has to resign immediately. तो it means लोक सभा बहुत पावरफुल हाउस है. नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर. मेजोरिटी है इंडिया में, डिसीजन ऑफ मेजोरिटी ऑलवेज प्रीवेल्स. तो लोकसभा का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है. मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. तो विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा सेंड दैट बिल टू राज्यसभा. राज्यसभा चेंजेस करे, मर्जी है लोकसभा की फॉलो करे ना करे. Then bill is sent to president and money bill president can't delay because वो बिल पहले ही उसको इन्फॉर्म करके फिर इंट्रोड्यूस हुआ है. तो president can't delay that bill. President has to sign. It means Lok Sabha is the powerful house in India. अब parliament, largest law making body in India. ठीक है.
इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम। लॉ के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? लिस्ट सिस्टम। इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, number 2 state list, then concurrent list, number 4 लिस्ट सिस्टम में नहीं आता है, इसे ऐसे लिखो रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स। Now look here, first is union list, 97 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, it has 97 subjects. Only parliament make laws, central government make laws. State list 66 subjects, 66 subjects, state government make laws. Concurrent list 47 subjects. How many subjects? 47 subjects. Both center and state government make laws. If clashes occur, then law made by central government prevails. दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। अगर झगड़ा हो जाए बनाते बनाते, तो दोनों में से कौन पावरफुल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लॉ मेड बाय सेंट्रल प्रिवेल्स। रेजिड्यूरी पावर्स आर ओनली एंजॉयड बाय पार्लियामेंट, वो तो है ही इनके पास। ठीक है, तो ये आप कवर कर सकते हो इसको। पार्लियामेंट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट में भी तो लॉ स्टेट में नहीं बनाती, स्टेट का मैं बताती हूँ। एंड रेजिड्यूरी पावर्स आर एंजॉयड बाय पार्लियामेंट। ये उसके फंक्शंस नहीं आएगा ना बच्चे, कि वो यूनियन लिस्ट पे भी लॉ बना रही है, कॉन्करेंट में भी बना रही है। डिपेंड अपॉन योर विश कि आप इनको पॉइंट्स बनाते जाओ। Parliament make laws on the subject of union list. Parliament make laws on the subject given in concurrent list. Parliament enjoys residuary powers. State list का बताऊं, अगर किसी स्टेट में emergency declare हो जाए, किसी स्टेट में कल को वायलेंस हो जाए, पंजाब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इमेजिन पंजाब में ही वायलेंस हो जाए, तो पंजाब में आ जाएगी स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा स्टेट इमरजेंसी, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो पावर में नहीं रहेगी। उस टाइम हमारे पंजाब के ये वाले लॉ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट। तब पार्लियामेंट यहाँ पे भी लॉ बनाती है। अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, कल को किसी भी स्टेट में वायलेंस हो जाए, तो वहाँ पे वो कहते हैं गवर्नमेंट फेल है। जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कंट्रोल ना कर पाए, वायलेंस हो जाए कंट्री में, रिलीजन को लेके हो जाए, किसी बात को लेके हो जाए, और स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाए उसे कंट्रोल करने में, देन वो स्टेट गवर्नमेंट का रूल खत्म हो जाता है। वहां पे आ जाती है स्टेट इमरजेंसी, मींस प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। एंड फिर ये जो 66 सब्जेक्ट्स हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो गई, फिर ये कौन लॉ बनाएगा? फिर पार्लियामेंट। तो ये आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी आप आगे जाके 9th 10th में करो। अभी आप सिंपल बताओ, इट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इट मेक्स लॉ ऑन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर्स आर आल्सो एंजॉयड बाय पार्लियामेंट। बस इतना सा काफी है, इट्स इनफ। ठीक, नेक्स्ट ये तो हो गए फंक्शंस। आगे देखो और फंक्शंस। मनी बिल आप बताओगे कि पार्लियामेंट जो है ना, नेशनल बजट is prepared by the parliament. Annual budget of the country is prepared by parliament, and government cannot spend even a single penny without the permission of parliament. Annual budget is passed by, ये भी उसके functions में आएगा, annual budget is passed by parliament, and government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament. नेक्स्ट फंक्शन देखो पार्लियामेंट के, मैं पार्लियामेंट के फंक्शंस बता रही हूँ। फर्स्ट इज इट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इट एंजॉयज रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स होती क्या है? सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट सिस्टम, दे आर एडेड इन रेजिड्यूरी पावर्स, एंड रेजिड्यूरी पावर्स आर ओनली एंजॉयड बाय पार्लियामेंट।
फिर आपने बताया कि पार्लियामेंट प्रिपेयर्स एनुअल बजट. Government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament. Next, parliament can take part in the elections of president and vice president. It can take part in the elections of president and vice president. Prime minister नहीं लिखना यहाँ पे. Prime minister is elected by people through elections. Parliament can take part in the elections of president and vice president. ठीक है. Next आप बताओगे, ये भी आप बता सकते हो, it is the highest forum of debates and discussions. It is the highest forum. Forum होती है place. It is the highest forum. Forum means place of debates and discussions. Next आप बता सकते हो, if it passes vote of no confidence. क्या? vote of no. मैंने no बोला, बच्चे लो लिख देते होते हैं. no confidence. If it passes vote of no confidence against council of ministers. If it passes vote of no confidence against council of ministers, then prime minister with his team has to resign immediately. So it means it has full control over executive. Parliament has full control over executive. Parliament has full control over executive. Parliament has full control over prime minister. किसका पार्ट है? उसकी टीम किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स पता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. If parliament passes vote, parliament has full control over executive. In parliamentary form of government, आप ये भी बता सकते हो, in parliamentary form of government, council of minister is answerable to parliament. Parliament, India में parliamentary form of government है ना. In parliamentary form of government, council of minister is answerable to parliament. Council of minister is answerable to parliament. If parliament passes vote of no confidence against council of ministers, then prime minister with his team has to resign immediately. So is it clear? Functions of parliament? Write the functions of parliament. It is the largest lawmaking body in India. It makes law on the subjects given in union list, concurrent list. It enjoys residual powers. Next, आप ये बता सकते हो कि parliament prepares annual budget. Government cannot spend even a single penny without the approval of the parliament. Next, it takes part in the elections of president and vice president. It has full control over executive. If in parliamentary form of government, आप ये भी बता सकते हो, council of minister is answerable to parliament. If it passes vote of no confidence, if it passes vote of no confidence against council of ministers, then prime minister with his team has to resign immediately. तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम के साथ रिजाइन करना पड़ता है. अगर आपको बच्चे रोल ऑफ पार्लियामेंट आ जाए, देन आंसर इज सेम. ठीक है. अगर आपको पेपर में रोल ऑफ पार्लियामेंट आ जाए तो आंसर इज सेम. रोल ऑफ पार्लियामेंट और फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एक ही बात है. अगर मैम रोल की जगह पावर्स लिखते हैं, राइट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, देन आल्सो आंसर इज सेम. मींस 3 क्वेश्चंस का सेम आंसर. रोल ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. कुछ भी लिख के आपको दे दें, वहां पे ये नहीं सोचना पावर्स तो मैंने की नहीं है, ये पावर्स ही तो है. इट हैज फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. रेजिडरी पावर अकेली इंजॉय कर रही है, वो पावर्स ही तो है उसकी. तो फंक्शंस, पावर्स, रोल एक ही बात है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे आपकी बुक में टर्म्स में पूछा हुआ है कोलिजन गवर्नमेंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन गवर्नमेंट का मीनिंग पूछा हुआ है आपसे. तो इसको यहाँ से बेटर लर्न करने से बेटर आप अपने आप प्रिपेयर करो. अपने आप कैसे? आप बताओ. आफ्टर इलेक्शंस, व्हेन
पार्टी दैट विन्स इलेक्शन कैन नॉट शो इट्स मेजोरिटी। इलेक्शंस के बाद जब जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है कैन नॉट शो इट्स मेजोरिटी, then it has to join hands with other political parties to show majority and to form government, and that is known as coalition government. एक मिनट मेरी एक बात ध्यान से सुनो. How many seats are there in Lok Sabha? 543. Imagine elections हुए और बीजेपी को मिले 200 सीट्स. इमेजिन, हम इमेजिन कर रहे हैं 200 मीन्स हाफ सीट नहीं ना मिली. देखो हाफ मिली, हाफ नहीं ना मिली, पर ये विनर है, सबसे ज्यादा इसी को मिली है सीट्स, ठीक है, बट हाफ से कम है. देन एट ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेंगे? देन इट हैज टू जॉइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू शो मेजोरिटी एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट. तो वो ज्वाइन करके हैंड्स जो गवर्नमेंट बनाएगी ना, वो गवर्नमेंट क्या आएगी? कोलिशन. एंड यू नो एट प्रेजेंट इन अवर कंट्री देयर इज नो कोलिशन गवर्नमेंट. एट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी अकेली को ही बहुत सारी सीट्स मिली हैं, नियर अबाउट 300. बीजेपी अपने आप ही पावर में आई है, उसे हैंड ज्वाइन नहीं करने पड़े. अगर हम 10 इयर्स बैक जाते, 10 क्या ज़्यादा, अगर हम कांग्रेस के पीरियड में वापस जाते हैं बिफोर द कमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अगर हम कांग्रेस के पीरियड में वापस जाते हैं, हम जाते हैं पीरियड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के पीरियड में, तो उस पीरियड में 10 साल जो वो गवर्नमेंट रही है तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, क्योंकि कांग्रेस को हाफ से ज़्यादा सीट्स नहीं मिली थी. तो इनको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजोरिटी शो करने के लिए, दे हैव टू ज्वाइन, कांग्रेस पार्टी को हैंड ज्वाइन करने पड़े थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और तब बनी थी हमारी इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट. बट एट प्रेजेंट इन अवर कंट्री देयर इज नो कोलिशन गवर्नमेंट. बट कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है? आफ्टर इलेक्शंस पार्टी दैट विन्स, उसे हाफ से कम सीट्स मिली हैं. पार्टी दैट विन्स कैन नॉट शो इट्स मेजोरिटी, देन it has to join its hands with other political parties to show majority and to form government. That is known as coalition government. तो उसे हम क्या कहेंगे? coalition government. तो एक तो ये दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है. नो सेकंड इज constituencies. What are constituencies? Constituencies के लिए आप सिंपल आंसर बताओगे, बिकॉज वी आर डूइंग पार्लियामेंट, तो हम सेंटर को कवर करेंगे. आप बताओगे फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स known as parliamentary constituencies, known as parliamentary constituencies. For the purpose of elections, country is divided into smaller parts, that is known as parliamentary constituencies. At present in our country there are 543 constituencies, and from each constituency one representative is elected. For the purpose of election, country is divided into smaller parts known as parliamentary constituencies. At present in our country there are 543 constituencies, and from each constituency one representative is elected. तो आप इस वे से इसका आंसर करोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब एमपी कौन होते हैं? एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. अगर मैं बोलूँ एमएलए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है. हम कर रहे हैं सेंटर की बात, तो सेंटर में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एक बात हमेशा याद रखना, फंक्शंस परफॉर्म बाय प्राइम मिनिस्टर, कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर ने फंक्शन परफॉर्म करना है ना, स्टेट में सेम फंक्शन किसने परफॉर्म करना है? चीफ मिनिस्टर. कंट्री में जो फंक्शन प्रेसिडेंट ने परफॉर्म करना है, स्टेट में सेम फंक्शन इज परफॉर्म बाय गवर्नर. अब हमारे यहाँ पे है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कंट्री में इधर है एमएलएज, इधर एमपीज हैं, इधर एमएलएज हैं. इधर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इधर है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इधर कंट्री को स्मॉलर पार्ट्स में बांटा जाता है, उधर जिस स्टेट में इलेक्शन होनी है उस स्टेट को स्मॉलर पार्ट्स में बांटा जाता है, उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज. लेजिस्लेटिव असेंबलीज.
ठीक है। तो इस वे से इलेक्शंस गवर्नमेंट, और इलेक्शंस के लिए जो डिवीजन होती है पार्ट्स की कंट्री की, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड इन इंडिया ईवीएम क्या है, आपकी बुक में ईवीएम वर्ड पूछा हुआ है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वर्किंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिसन केयरफुली, ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी जो इलेक्शंस होते हैं वो इस मशीन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। एंड सीक्रेट बैलेट, नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हुज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट। किसी को नहीं पता होता वोटर ने किसको वोट डाली, ये सीक्रेट होता है सारा। वोटर किसको वोट डाल रहा है, साथ वाले को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता आपने अपनी वोट किसकी फेवर में डाली। इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो वोटिंग मशीन, इस मशीन के थ्रू वोट्स पड़ते हैं, ठीक है। अभी आप छोटे हो तो आपने ये नहीं देखा होगा, बट आपके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं ना, तो उनसे पूछा करो, तो यहाँ पे एक निशान भी लगा देते हैं फिंगर पे, ठीक है। वो इसलिए कि इस पर्सन की वोट डल गई, ताकि वो दोबारा रिगिंग ना कर सकें, लोग फ्रॉड ना कर सकें। रिगिंग भी तो करते हैं, रिगिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्शन के लिए वर्ड को यूज किया जाता है फ्रॉड, लोग फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो इस वे से, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आपको भी इतना ही आज लर्न करना है।